الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. دینی ملی بھائیو، ہر قسم کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی کا مستحق وہ رب ذوالجلال ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، اور ہمیں پیدا کرنے کے بعد ہمیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، صحیح ڈگر پر گامزن کرنے کے لیے بے شمار انبیاء کو اس کائنات میں مبعوث فرمایا۔ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء و رسل پر، خصوصاً ہمارے ہادی و رہنما احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی عبدک و رسولک محمد۔ قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ الہ العالمین مجھے اس آیت کی روشنی میں آپ تک حق پہنچانے اور ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دراصل اس آیت کا تعلق صحابہ اکرام جیسی جلیل القدر شخصیات سے ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ صحابی اس شخصیت اور اس پاک باز جانثار عظیم ذات کا نام ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہو، آپ پر ایمان لائی ہو، اور ایمان ہی کی حالت میں دنیا سے انتقال کر گئی ہو۔ ایسی عظیم شخصیت کو صحابی کہا جاتا ہے۔ گویا کہ صحابہ وہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، صحابہ وہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے رہے، صحابہ وہ ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ جہاد کیا، صحابہ وہ ہیں
جنہوں نے اللہ کے راستے میں اپنے مال کو قربان کیا. صحابہ وہ ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت پائی. صحابہ وہ ہیں جنہوں نے دین ڈائریکٹ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے. صحابہ وہ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو دین کے لیے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت کے لیے وقف کر دیا. یہاں سے یہ پتہ لگتا ہے کہ صحابہ کی شخصیات کوئی عام آدمی، کوئی عام شخصیت نہیں ہے. صحابہ کی ذات کوئی عام ذات نہیں ہے، بلکہ صحابہ ہر شخصیت سے انبیاء کے بعد اعلیٰ و افضل اور بہتر ہیں. امت میں سب سے بہتر انبیاء کے بعد صحابہ ہی ہیں، اور اس میں بالترتیب ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، عبد الرحمن ابن عوف، دیگر سارے صحابہ، یہ سب وہ ہیں جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہوئی. اس آیت میں صحابہ کے 3 گروپ کا تذکرہ کیا گیا ہے، 3 جماعتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے. فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین. پہلی جماعت وہ ہے جنہوں نے ہجرت کی، خواہ وہ ہجرت حبشہ کی طرف کی ہو یا مدینہ کی طرف کی ہو، دین کی دعوت کے لیے، دین کی تبلیغ اور رسو و اشاعت کے لیے ہجرت کی. وہ پہلی جماعت السابقون الاولون من المہاجرین. دوسری جماعت والانصار، انصاریوں کی جو مدینہ میں تھے، جنہوں نے مہاجرین کی خدمت کے لیے اپنی بے شمار چیزوں کو پیش کر دیا. حتیٰ کہ اگر کسی کی 4 بیویاں تھیں تو طلاق دے دی، کہا کہ تم ایک سے شادی کر لو. تو ضروریات کو ان کے مکمل کیا، ان کے لیے قربانیاں دی. یہ صرف اور صرف دین کے لیے ان کی قربانیاں تھیں. گویا کہ صحابہ کا دوسرا گروپ کون سا ہے؟ انصار کا. ایک مہاجرین کا، دوسرا انصار کا، اور تیسری جماعت والذین اتبعوہم بإحسان، جنہوں نے اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ صحابہ کی، مہاجرین اور انصار کی اتباع کی، ان کی بات مانی، ان کے کہنے پر چلے. ایک جماعت مہاجرین کی، دوسری جماعت انصار کی، اور تیسری جماعت اخلاص کے ساتھ متبعین کی، اخلاص کے ساتھ اتباع کرنے والوں کی. لیکن ان کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کیا؟ ایک سرٹیفکیٹ دیا صحابہ کو. فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کہ اللہ صحابہ سے راضی ہو گیا اور صحابہ اللہ سے راضی ہو گئے. یہ سرٹیفکیٹ ہے، یہ ڈگری ہے جو رب ذوالجلال نے اپنی رضامندی کی صحابہ کو دی. اور اسی پر بس نہیں کیا، بلکہ ایک اور ڈگری دی، ایک اور شہادہ دی، سرٹیفکیٹ دیا. کہا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، اور اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کی ہیں. یہ دوسرا سرٹیفکیٹ ہے. اللہ ان سے راضی ہو گیا، سارے صحابہ سے. کسی ایک صحابی کا استثناء نہیں ہے، کسی ایک کو الگ نہیں بیان کیا گیا کہ فلاں کو چھوڑ دیا گیا. سارے صحابہ، تینوں گروپ کو اللہ نے کہا، اللہ راضی ہو گیا اور جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا. اور اس کے بعد تیسری بات کہی ذالک الفوز العظیم، کہا کہ یہ اللہ کی خوشنودی حاصل ہو گئی صحابہ کو اور اللہ نے ان کو جنت دے دی. یہ بڑی کامیابی ہے، یہ عظیم کامیابی ہے. گویا کہ پتہ یہ لگا
कि सारे सहाबा को रब्बे जुल जलाल की तरफ से खुशनूदी का, अल्लाह की रजामंदी का सर्टिफिकेट मिल चुका है और सारे सहाबा को अल्लाह की जन्नत की खुशखबरी मिल चुकी है, अल्लाह की जन्नत की खुशखबरी मिल चुकी है। अब अगर कोई ये कहे कि नऊज़ु बिल्लाह, बाद सहाबा मुनाफिक थे, बाद सहाबा मुर्तद थे, कोई ये कहे कि सारे सहाबा जन्नती नहीं हैं, सारे सहाबा जन्नत में नहीं जाएंगे, तो आपका क्या ख्याल है? फैसला आपके हाथ में है। रब कहता है कि रब ने उनको जन्नती बनाया है, रब ने उनको अजीम कामयाबी से नवाजा है, रब ने अपनी खुशनुदी से नवाजा है। लेकिन आम बंदा, आज का इंसान, रोड पर चलने वाला भिखारी कहता है कि नहीं, सहाबा में से बाज मुनाफिक थे, बाज सहाबा जन्नत में नहीं जाएंगे। अल्लाहु अकबर, ये रब का बागी है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बागी है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुखालिफ है और किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल का खुला हुआ बागी और दुश्मन है। अगर ऐसा शख्स, कौन शख्स? वो जो सहाबा के ऊपर एतराज करता है। और आपको ये पता होगा कि डिग्री बड़ी मशक्कतों के बाद मिलती है, शहादा बड़ी मेहनतों के बाद मिलती है। एक तालिब इल्म जब पढ़ता है, 10 साल पढ़ने के बाद उसको डिग्री मिलती है, एमए करता है, बीए करता है, पीएचडी करता है, कितने साल गुजारने के बाद डिग्री मिलती है। रब्बे जुल जलाल ने सहाबा का भी इम्तिहान लिया था। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, उलाइका अल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, कहा कि ये वो सहाबा की शख्सियतें हैं जिनके दिलों को रब्बे जुल जलाल ने आजमा लिया है, इम्तिहान ले लिया है। उनको सारी आजमाइशों से गुजरने के बाद और उसके बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरबियत में छोड़ा, आपने तरबियत की, उसके बाद डिग्री दी, तब जाकर के शहादा मिली है। और ये शहादा बहुत अजीम चीज है। जन्नत एक और डिग्री मिली है, कैसे? आप देखें, हदीस से समझें इसको। अन अब्दुल्लाह इब्न अम्र रज़ियल्लाहु अन्हुम अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल बल्लिगू अन्नी वलौ आया वहद्दिथू अन बनी इसराइल वला हरज। रिवायत सही है। फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, किसको? सहाबा से फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, आप जाओ, दीन की तबलीग करो, अल्लाह के पैगाम को लोगों तक पहुंचाओ। किसने कहा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा। अब आप ये बताइए कि अगर आपको कहीं कोई अमानत भेजना हो, किसी को कोई पैगाम भिजवाना हो, तो आप कौन से आदमी का इंतखाब करेंगे? दुनियावी मामलात में हम देख लें कि अगर आपको कोई चीज खरीदना होती है, ऑनलाइन खरीदना है, तो फिर आप ढूंढते हैं कि कौन सी कंपनी अच्छी है, डिलीवरी किसकी अच्छी है, धोखेबाज ना हो, पैसे ना खा जाए, सामान में गड़बड़ी ना करे, क्वालिटी अच्छी दे। ये दुनियावी उसूल है। मेरे नबी ने सहाबा पर भरोसा किया, सहाबा पर एतमाद किया और आपने कहा कि मेरे सहाबा बल्लिगू अन्नी वलौ आया, जाओ कुरान की एक आयत सुनो, मुझसे हदीस सुनो, लोगों में पहुंचा दो। क्योंकि मेरे नबी को ये पता था कि सहाबा ईमानदार हैं, मेरे नबी को ये पता था कि सहाबा अमानतदार हैं, मेरे नबी को ये पता था कि सहाबा कौम तक, दुनिया तक जो पैगाम पहुंचाएंगे वो बगैर किसी धोखाधड़ी और मिलावट के पहुंचाएंगे। ये डिग्री दी है किसने? नबी ने। उधर अल्लाह ने डिग्री दी रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु, और कहा अद्दलहुम जन्नत, जन्नत की डिग्री दी। और इधर मुस्तफा ने डिग्री दे दी, कहा कि तुम अमानतदार हो, तुम सच्चे हो, तुम सिद्क़ो सफा के पैकर हो, तुम नबी पर जान कुर्बान करने वाले हो, तुम दीन में धोखाधड़ी करने वाले नहीं हो। पता ये लगा कि सहाबा अल्हम्दुलिल्लाह पाकबाज शख्सियात हैं, और आपने जो सर्टिफिकेट दिया वो उनके दिल के जज्बात और उनके अमाल को देखने के बाद, उनकी तरबियत करने के बाद आपने सर्टिफिकेट दिया। और जब सर्टिफिकेट मिल गया तो एतराज की गुंजाइश नहीं बची, सब्बो शितम की गुंजाइश नहीं बची। अगर कोई एतराज करे
सबो शितम करता है या फिर इल्जाम तराशी करता है, बहतानबाजियां करता है इस बात को लेकर के कि सहाबा में आपस में इख्तिलाफ हुआ, मुशाजराते सहाबा को दलील बना करके सहाबा की तनकीस करता है। तो मेरा पहला जवाब ये होगा कि सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को सबसे पहले तो सारे सर्टिफिकेट मिल चुके हैं जन्नत के, और ये सर्टिफिकेट्स गलतियां होने के बाद मिले हैं। आपसे लग़्ज़िशें हो सकती हैं, बशरियत का तकाजा है, सहाबा से लग़्ज़िशें हुई होंगी, बशरियत का तकाजा है, लेकिन उन लग़्ज़िशों को माफ करने के बाद अल्लाह ने कहा कि इनके लिए जन्नत है, सारे सहाबा जन्नती हैं और अल्लाह इनसे राजी है। दूसरा जवाब यह होगा कि सहाबा नेक नियति में, सहाबा जो आपस में इख्तिलाफ हुए उनसे नेक नियति में गलत फहमी हुई है। गौर कीजिएगा जुमले पर, सहाबा से नेक नियति में गलत फहमी हुई थी। हालांकि जन्नत का सर्टिफिकेट मिल चुका है, कहने का कोई हक नहीं बचता, लेकिन नेक नियति में गलत फहमी हुई थी। और वो इस तरह कि तलहा व जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हुम, हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु इस पक्ष में थे कि हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब खलीफा बने तो उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कातिलीन से बदला नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे भाई? अरे कातिलीन है, तुम पावर में हो, हाकिम हो, बदला लो, उनका कहना ये था। लेकिन हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े हकीम थे, बड़े दानिशमंद होशियार थे। क्यों कि हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिन्होंने तारीख पढ़ी है, आपकी जब शहादत हुई तो फितने उरूज पर थे, इंतशार हो गया था, उम्मत में अजीब से कैफियत और हालात थे, अजीब तरह के हालात बन गए थे। ऐसे हालात में हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खलीफा बनाया गया। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी दानिशमंदी और होशियारी से ये सोचा कि अगर ऐसे हालात में, जबकि हर तरफ इंतशार है, फितना उरूज पर है, अगर मैं उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कातिलीन का बदला लेने लगूं तो ये फितना मजीद बढ़ जाएगा, ये फितना मजीद उरूज पर जाएगा। लिहाजा कहा कि थोड़ा सा संभलने दो, हम इस फितने की कातिलीन को सजा जरूर देंगे, लेकिन पहले थोड़ी शान और शौकत में आ जाएं, थोड़ा सा ताकतवर हो जाएं, हुकूमत थोड़ी मजबूत हो जाए, उस वक्त उनके कातिलीन से बदला लिया जाएगा। अभी नहीं। लेकिन हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत तलहा और जुबैर और इनके साथ दीगर सहाबा इस बात पर मुसिर थे कि इनसे बदला लिया जाए। गोया कि झगड़ा नेक नियति में गलत फहमी पर था, खिलाफत के लिए झगड़ा नहीं था, हुकूमत के लिए झगड़ा नहीं था, तख्तो ताज के लिए झगड़ा नहीं था, बादशाहत के लिए झगड़ा नहीं था। ये झगड़ा सिर्फ और सिर्फ हजरत उस्मान के कातिलीन के बदला लेने के ताल्लुक से था। उसकी मिसाल आप ऐसे समझे, मामूली से एक छोटी सी मिसाल, जैसे मसलन एक मस्जिद जंगल में बना दी जाए। कहां? जंगल में मस्जिद बना दी गई, लोग नमाज पढ़ने आ रहे हैं। पुराने, आज के ज़माने में तो गाड़ियों का इंतज़ाम है, लेकिन पुराने ज़माने का आप तस्वुर कीजिए, जब गाड़ियां नहीं थी तो उस वक्त लोग अपने जानवरों पर सवार होकर के आते थे मस्जिद में। कोई पैदल आता था, कोई कैसे आता था, कोई ऊंट पर, कोई घोड़े पर। मस्जिद जंगल में बना दी गई, उसके इर्द गिर्द कोई आबादी नहीं है, कोई पार्किंग नहीं है, एक मस्जिद ही की जगह पड़ी हुई है, लोग जानवरों पर आ रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए। सोचा, एक बेचारा समझदार आदमी था, उसने सोचा कि लोग जानवरों पर नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि नमाज के लिए जब खड़े हो तो इनके जानवर कहीं भाग ना जाए। उसने उस जमीन में जगह जगह खूंटे गाड़ दिए। क्या? खूंटे, ताकि इन जानवरों को उस खूंटे से बांध दिया जाए। काम अच्छा था, अच्छी नीयत से, अजर सवाब की नीयत से उन्होंने खूंटे गाड़े, जानवर बांधे गए। अब उसमें कुछ लोग आए तो कोई ऐसा भी शख्स आया जो खूंटे से टकरा गया, खूंटे से टकरा गया, चोट लग गई उसके। तो उसने क्या किया कि खूंटा खोल करके फेंक दिया। नीयत दोनों की दुरुस्त है अपनी जगह,
पहले वाले शख्स ने खूंटे इसलिए गाड़े ताकि जानवर भाग ना जाएं, और दूसरे वाले शख्स ने इसलिए खोल दिए कि आने वाले के पैर में खूंटा लग ना जाए, कहीं चोट ना लग जाए। नियत दोनों की अपनी जगह दुरुस्त है। क्या कहेंगे, कौन कोई गलत है? नहीं, किसी पर बहुतान तराजी नहीं की जाएगी, दोनों की नियत अपनी जगह सही है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नियत भी अपनी जगह दुरुस्त थी और दूसरे सहाबा की नियत भी अपनी जगह दुरुस्त थी। लिहाजा नेक नियती में गलत फहमी की वजह से आज लोग उनको बदनाम करें, हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर इल्जाम तराशी करें और उनको तरह तरह से निशाने शितम बनाए, तो फिर क्या कहा जाएगा? जबकि आपको पता है कि हमने सर्टिफिकेट दे दिया है, अल्लाह ने सर्टिफिकेट पहले ही दे दिया है। आयत सुने, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीन इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा। अल्लाह रब्बुल आलमीन राजी हो गया उन मोमिनीन सहाबा से जिन्होंने आपके हाथ पर बैअत की है। लिहाजा सहाबा से अल्लाह इस आयत में भी बता रहा है राजी हो गया। इसके अलावा हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? इतनी सारी चीजें देखने के बाद जब सहाबा को शहादा मिल चुकी है, सर्टिफिकेट जन्नत का मिल चुका है, अल्लाह उनसे राजी हो चुका है, तो आज अगर कोई इल्जाम तराशी करे तो हम दिफा करेंगे, कोई बहुतान तराजी करे तो हम उसका जवाब देंगे, लेकिन अच्छे अंदाज से। कोई कुछ कहेगा अगर सहाबा के ताल्लुक से तो हम अच्छे और हकीमाना अंदाज से उसके ऊपर रद्द करेंगे, जुबान से, तहरीर से, कलम से। और वो इसलिए कि सहाबा की हिदायत पर हमें डिपेंड किया गया है। कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदऊ। फरमाया कि तुम्हारा ईमान अगर ऐसा है कि तुम सहाबा के ईमान की तरह ईमान लाए हो, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही, कि सहाबा जैसा तुम ईमान लेकर के आए हो, फ़क़द इह्तदऊ, तो फिर तुम सबके सब हिदायत याफ्ता हो। लिहाजा सहाबा के ईमान की तरह अगर हमारा ईमान है तो हम हिदायत याफ्ता हैं। गोया कि सहाबा का नक्शे कदम रोशनी है, सहाबा का नक्शे कदम नूर है, सहाबा का नक्शे कदम उसवा है। जिस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी उसवा और रोशनी है। और जो सहाबा पर इल्जाम तराशी करेगा, बुरा भला कहेगा, सब्बो शितम करेगा और बहुतानबाजियां करेगा, तो उसका हश्र क्या होगा? जहन्नम। वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम। फरमाया जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नाफरमानी करेगा और सहाबा के रास्ते को, तरीके को छोड़ करके दूसरे रास्तों और तरीके को इख्तियार करेगा, वह यत्तबि गैर सबीलिल मोमिनीन, सहाबा के रास्ते को छोड़ करके दूसरे रास्तों पर चलेगा, तो क्या करेंगे? नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम, जहन्नम में दाखिल कर देंगे। कहां? जहन्नम में दाखिल कर देंगे। ये किसकी सजा है? जो सहाबा को गालियां दे, सहाबा को बुरा भला कहे, सहाबा पर इल्जाम तराशियां करे, सहाबा पर बहुतानबाजियां करे। हमारी जिम्मेदारी ये है, और इस मुख्तसर से वक्त में हमारा और हम सब का, सारे मुसलमानों का, जो भी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा करते हैं, कि वो सहाबा से भी वैसे ही मोहब्बत करें जैसे नबी से मोहब्बत करते हैं। सारे सहाबा की मोहब्बत पर ईमान लाए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, नबी सईद अल-खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तसुब्बु अस्हाबी, ला तसुब्बु अस्हाबी। कहा कि मेरे सहाबा को गाली मत देना, मेरे सहाबा को सब्बो शितम का निशाना न बनाना। सराहत के साथ आपने कह दिया, क्यों? फवल्लाहि, एक रिवायत में फवल्लज़ी नफ्सी बियदिही लौ अनफ़क़ अहदुकुम मिस्ल उहुदिन ज़हबा मा बलग़ मुद्द अहदिन वला नसीफ़ा। बुखारी शरीफ की रिवायत है कि सहाबा के पैर का धोवन भी नहीं है, कितना भी उहुद पहाड़ के बराबर
اگر کوئی سونے کا پہاڑ کیوں نہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دے لیکن صحابہ کے عشر عشیر نصف بھی نہیں پہنچ سکتا ہے تو پھر ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. تو ہم صحابہ کا دفاع کریں گے, ہم صحابہ سے محبت کریں گے, ہم صحابہ کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کریں گے, ان کے نقش قدم کو اسوہ بنائیں گے, ان کی بتائی ہوئی باتوں کے مطابق زندگی گزاریں گے. اور اگر کوئی الزام تراشیاں کرے گا تو اچھے انداز سے حکمت کے ساتھ ہم یہ کہیں گے کہ یہ وہ پاک باز ہستیاں ہیں جن کی شہادت اللہ نے دی ہے, جن کی شہادت رب نے دی ہے, اور جن کی شہادت خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. لہذا کائنات میں رب ذوالجلال کے بعد محمد عربی جیسی عظیم کوئی شخصیت نہیں, اور دنیا میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ سے زیادہ بہتر کوئی ہے نہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما. الہ العالمین ہمیں قرآن و سنت کو جاننے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. الہ العالمین ہمارے اندر اللہ سے, نبی سے اور صحابہ سے محبت پیدا فرما دے, ہمارے اندر دین کی محبت اور لگاؤ پیدا فرما دے, ہمارے دلوں میں دین سے لگاؤ اور دین کی جستجو پیدا فرما دے. الہ العالمین ہم کو دنیا میں عزت عظمت اور سربلندی کے ساتھ زندہ رکھ, جب خاتمہ ہو تو ایمان اور توحید پر ہمارا خاتمہ ہو. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم.